آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سینٹ میں پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے. آج ہے جناب 3 مارچ اور 3 مارچ یعنی کہ آج پولنگ کا دن ہے سینٹ انتخابات کا. پولنگ کا وقت جناب صبح 9 بجے شروع ہو چکا ہے. آج اس حوالے سے جناب آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے فیصل واڈا نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ یہ سینٹ انتخابات کا جو معاملہ ہے یہ اب سے کچھ گھنٹے تک جاری رہے گا. آج پورا دن ARY نیوز لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر کرتا رہے گا سینٹ انتخابات کے حوالے سے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے اتنا تو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں تمام سینیٹرز یعنی کہ 11 کی 11 نشستیں بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں. بالکل شفاعت، آج تقریباً 37 نشستوں پر سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں. ابھی جو آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے قومی اسمبلی کے، جہاں پر سینٹ کے انتخابات کا ووٹ کاسٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. فیصل واڈا نے، جو کہ خود سینٹ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں ایز اے سینیٹر، انہوں نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو پروونشل تمام تر اسمبلیز ہیں اس میں بھی صبح 9 بجے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے شفاعت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خاطر خواہ اقدامات بھی کیے گئے ہیں. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف حکومتی جماعت بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے. اسپیسیفکلی کل شفاعت جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے بعد تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیز بہت خیال بھی کر رہی ہیں اپنے MPs اور MNAs کا، اور مسلسل نظر بھی رکھی جا رہی ہے کہ کہیں کسی بھی آؤٹ سائڈر کا ان کے کسی MP یا MNA سے رابطہ نہ ہو، کیونکہ کل جو ویڈیو آئی ہے علی حیدر گیلانی کی اس کے بعد تو کافی تہلکہ مچ گیا. جی جناب، what an explosive evening it was last night. کیا PSL کیا سینٹ، ہر طرف جناب کل بیک ٹو بیک بریکنگ جاری تھی. اور کل آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ پہلے ایک ویڈیو ہمارے سامنے منظر عام پہ آئی اور آپ نے اس کو دیکھا کہ جناب تقریباً 6 بجے کے قریب جب اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی ہماری سینٹ انتخابات کے حوالے سے، ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے. اس کے کچھ دیر بعد رات 10 بجے کے قریب جناب ایک تفصیلی آڈیو بھی آتی ہے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے. پھر خیبر پختونخوا سے کل کچھ واٹس ایپ میسیجز کے اسکرین شاٹس شیئر کیے گئے جس میں مختلف نمائندگان کو خریدنے کے حوالے سے بولیاں لگائی گئی. بالکل شفاعت، اس حوالے سے تو اسپیسیفکلی بات بھی کریں گے. جو کل ویڈیو سامنے آئی تھی، جو کل اسپیسیفکلی سب سے پہلے ARY نیوز سے نشر بھی کی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. لیکن ابھی قومی اسمبلی میں جو سینٹ کے انتخابات کی پولنگ کا عمل شروع ہو گیا، اس حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی. زاہد، یہ بتائے گا کہ کون کون اب تک جو MNAs ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. ہم نے ابھی تک تھوڑی دیر پہلے فیصل واڈا صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. ابھی غالباً اندری عباسی صاحب ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. زاہد مشوانی سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک پولنگ کا یہ عمل جاری رہے گا. قومی اسمبلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی سندھ اسمبلی کا بھی رخ کریں گے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی میں، پنجاب میں تشریفات انفیکٹ، کیونکہ پہلے ہی جو 11 کے 11 جو سینیٹرز تھے ان کو بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے. لیکن ابھی سندھ اسمبلی کا رخ کریں، ہم سندھ اسمبلی کا رخ کرتے ہیں جناب. سندھ میں ہمارے نمائندہ جناب موجود ہے ارباب چاڈیو، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ارباب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، ذرا بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ مقابلے سے پہلے ہی ایک مقابلہ کل ہو گیا تھا جہاں ممبران نے اپنی زوروں سے ایک دوسرے کی پٹائی بھی کی، گال پہ تھپڑ بھی مارے، ٹنڈ پہ بھی مکے مارے اور ایک دوسرے کو دھکے بھی دیے اور پاؤں بھی زخمی کی. بڑی زور آزمائی کی. پہلوان تھک گئے، کسی نے روکا نہیں. جب ایک دوسرے کو مار پیٹ کے خود ہی جو ہے منتشر ہو گئے. آج اسی کے پس منظر میں یہ ہو رہا ہے، کشیدگی ہے. PTI کے 2 اراکین اسمبلی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلم ابڑو اور شہریار مہر نے یہاں پر جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ وہ PTI کو نہیں دیں گے. تو لہذا PTI کی 2 وکٹس جو ہے وہ علن گر گئی ہیں. اور باقی جو ہے اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ معاملہ کیونکہ ضمیر کا معاملہ ہے اور ووٹ بھی سیکریٹ ہے. ہم کسی کے ضمیر پہ بابا ہم کون ہیں کچھ کہنے والے؟ باقی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آتا ہے وہ اعلان کہہ رہا ہے کہ جی دونوں نے کہہ دیا ہے. لیکن یہ چاندی صاحب کل ہم نے یہ بھی دیکھا ویڈیوز میں کہ جو ضمیر ہے یہ کافی مہنگا ضمیر ہے، کوئی سستا ضمیر نہیں ہے. یہ اسپیسیفکلی جو ضمیر کی بات کریں یہ بہت مارکیٹ میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہے. یہ چاندی صاحب مجھے بتائے گا کہ کل یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین جو آج آئے بھی ہیں، وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اور آگے بھی رہیں گے لیکن ووٹ نہیں ڈالیں گے ہم. تو آج یہ جب آئے ہیں تو کس حالت میں تھے؟ آپ کی وجہ سے ان سے بات ہوئی کل آج صبح؟
जी बिल्कुल, आज जैसे ही यहाँ सिंध असेंबली पहुंचे तो असलम अबड़ो और शहरियार मारे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे अपने रिजर्वेशन है, 3 साल से हम बर्दाश्त करते आ रहे थे, आज हमें मौका मिला है कि हम जो है अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। तो किसी ने पूछा कि आपका किसके मुताबिक वोट देंगे, उन्होंने कहा हमने पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो वाज़ेह तौर पर ये उन्होंने एक लकीर खींच दी है। तीसरा एक मुगवी एमपी है जो कि अभी तक कल से गुम हो चुका है, अभी तक यहाँ नहीं आया। हो सकता है वो पीटीआई अराकीन के साथ ही आए। जी हाँ, करीम कबूल की बात कर रहे हैं, वो अभी तक गुम है। कल जिस तरह उसको यहाँ से ले जाया गया था वो दुनिया ने मंजर पूरा देखा। अब वो खुद यहाँ से इनके साथ गया, उन्होंने वो मनसूबाबंदी के साथ गया या इत्फाकी वाकया था, क्या था, ये तो अब तहकीकात के ही तौर पर वाज़ेह होगा। इस सिलसिले में स्पीकर ने एक कमेटी बना दी है तहकीकात की कि कल जो वाकया यहाँ हुआ था उसमें करीम कबूल खुद इस पूरे मामले में शामिल था या उसको जबरदस्ती ले जाया गया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे हम लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं जनाब बलूचिस्तान का, जहां अतिया अकरम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, बताइएगा क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी ऐसा है कि बलूचिस्तान में भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो है 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार आज मद्दे मुकाबिल हैं और 9 बजे का टाइम था पोलिंग का मरहला स्टार्ट होने का, लेकिन अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। और इस वक्त जो है जनरल नशिस्त से बाप पार्टी के जो हैं उम्मीदवार प्रिंस आगा उमर जई और अकलियती नशिस्त के लिए दिनेश कुमार जो हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन वोट अब तक कास्ट नहीं हुआ। और दूसरी जानिब अगर हम कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के बहुत फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 800 के करीब जो है वो पुलिस, एटीएफ और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए सूबाई असम्बली के जो करीबी स्कूल्स और इमारतें हैं उनकी निगरानी की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है वो शहर के दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वोट के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी तक बलूचिस्तान असम्बली में वोट कास्ट नहीं हुआ। अभी वोट कास्ट करने का जो अमल शुरू नहीं हुआ। हम तमाम सूरत हाल पर जो बलूचिस्तान में है आपसे गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। अभी ज़रा हम पेशावर का रुख कर लेते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या पोलिंग का अमल शुरू हुआ है या नहीं। हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है। ज़ियाउल, ये बताएगा, अभी जैसे आपने सिंध में सुना कि कराची में देखा, अरबाब चांडियो बता रहे थे, सूरत हाल बता रहे थे, बलूचिस्तान में तो अभी पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी, पेशावर में यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टाफ पहुंच चुका है, रिटर्निंग अफसर भी पहुंच चुके हैं, पोलिंग अमला भी पहुंच चुका है। बैलेट बॉक्स को जो है तो बाकायदा मीडिया के सामने बंद भी किया गया, सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो MPAs हैं जो आज सेनेट के इलेक्शन के लिए वोटर्स भी हैं, तो उसमें JUI के और नून लीग के MPAs जो है उनमें से चंद एक अभी पहुँचे हैं, जबकि उम्मीदवारों में JUI के जो उम्मीदवार हैं मौलाना अताउर रहमान और इसके अलावा नून लीग के जो उम्मीदवार हैं अब्बास अफरीदी वो पहुंच चुके हैं। साथ साथ अभी ये बताया जा रहा है कि जो हुकूमती MPAs हैं वो इस वक्त वज़ीर आला महमूद खान के मेहमान हैं नाश्ते पे, वहाँ पर वो नाश्ता करेंगे और फिर तैयार होकर वो MPA ये KPS खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँचेंगे। और यहाँ पर उनके लिए मुख्तलिफ पैनल बनाए गए हैं, कुछ 7 पैनल हैं। हर वज़ीर के साथ जो है तो उनको 20-20 जो MPAs हैं उनका पैनल है, वो अपने पैनल के साथ यहाँ पर बाकायदा आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। अभी तो ये सिलसिला शुरू होने को ही है तकरीबन कुछ ही लम्हे में। साथ यही बताता चलूँ कि यहाँ पर सूरत हाल भी काफ़ी दिलचस्प रही। रात गए तक जिस तरीके से ARY न्यूज़ ने रात को भी ये खबर ब्रेक की थी, बल्कि जो MPA अब्दुल सलाम अफरीदी के साथ जो गुफ्तगू हुई थी, जिनको जो उनका ये दावा भी है और उन्होंने एक MPA अहमद कुंडी पे इल्ज़ाम भी लगाया कि 8 करोड़ रुपए उनको रात को आखिरी वक्त की जो ऑफ़र थी 4 करोड़ से शुरू हुई थी ये ऑफ़र और 8 करोड़ पे ये आई है रात को, उनका ये दावा था। तो वो भी रात को हमने दिखाया। ये सिलसिला रात गए तक मुख्तलिफ जो होटल्स हैं वहाँ पर ये गहमा गहमी MPAs की रही। स्पीकर हाउस में भी जो MPAs हैं तहरीक इंसाफ के, उनके लिए भी रात को इशाए का बंदोबस्त किया गया था और जो कैंपेन है वो भी रात गए तक जारी रही थी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ था। लेकिन चल रही है जनाब सेनेट की गहमा गहमी सेनेट इंतखाबात के लिए। देखते हैं जनाब के सूबाई असम्बलियां क्या फैसला सुनाती हैं। वैसे फैसल करीम कुंडी साहब तो कह चुके हैं जनाब के
خیبر پختونخوا اسمبلی سے پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی. اب کیسے دے گی؟ نشستیں تو ہے نہیں, کیسے دے گی؟ یہ تو ضیاء الحق صاحب آپ سے ہم لمحہ بلمحہ پوچھتے رہیں گے. آپ تمام نمائندگان کا جناب ارباب چانڈیو صاحب, عطیہ اکرم اور ضیاء الحق صاحب, آپ کا شکریہ. ہم آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی اس حوالے سے بات چیت کرتے رہیں گے. فی الحال چلتے ہیں جناب. ابھی جیسے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک ایک پینل کر کے آ رہا ہے, 7 پینلز انہوں نے بنائے, تو ایسے ہی دیکھیں گے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ سندھ میں بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایم پی ایس تھے, انہوں نے ان تمام تر ایم پی ایس کو مطلب ہوٹل میں رہائش بھی دی ہوئی تھی, اور ان کا بھی یہ پلان ہے کہ وہ بھی ان کو ساتھ لے کر آئیں گے. اب کل جس ویڈیو نے سب سے زیادہ تہلکہ مچایا, وہ بھی آپ خود سوچیں کہ الیکشن سے ایک رات پہلے ہی, سینٹ الیکشن سے بالکل ایک رات پہلے ہی مبینہ ووٹ خریدنے کی ایک تہلکہ انگیز ویڈیو سامنے آئی, جس میں ہم دیکھ سکتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی جو ہیں, وہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سے سینٹ انتخابات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کو ترکیب بتا رہے تھے کہ ووٹ ضائع کیسے کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیے. فیوریٹ نمبر بتا دوں. 7 نہیں 2 نمبر ہوں. 2 نمبر ہوں. 60 لگا. آپ کا میرا ہے 71. کوئی بھی نمبر. آپ کا 11. وہ 11ویں والے کا 11 ہو گیا. ہاں. اسلم بھائی کو کیا دینا ہے, وہ ہے بیچ میں 23. یہ 4 ہم پکے ہیں. 23. یہ نمبر پھر یاد رکھنا بھائی. یہ نمبر یاد رکھنے میں آپ کو لکھ کے بھی دے ٹھیک ہے. دوں گا, تصویر بھی کھینچ دوں گا اس کی. ٹھیک ہے. 71. اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک انہوں نے جو لگا کے, اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے, یوں کراس کرو گے, دونوں کو کراس کرو گے, اٹیک ہوگا. تم نے تو لکھنا ہے 23 70 61, تاکہ جب وہ پائلٹ میں اپنے پہ اپنا لکھوں اپنے پہ اپنا نمبر لکھے گا, 60 لکھوں گا. 60 لکھے گا. کہاں پہ بیلٹ پہ؟ بیلٹ کرو گے, دونوں کو کراس کرو گے, اٹیک ہوگا. تم نے تو لکھنا ہے 23 70 61, تاکہ جب وہ پائلٹ میں اپنے پہ اپنا لکھوں اپنے پہ اپنا نمبر لکھے گا, 60 لکھوں گا. 60 لکھے گا. کہاں پہ بیلٹ پہ؟ بیلٹ کے بیلٹ پہ. تو جناب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں علی حیدر گیلانی ہیں, مبینہ طور پہ وہ ووٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں, بلکہ خود انہوں نے تصدیق بھی کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. فردوس صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا, یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور ویڈیو کے بعد کل رات سکرین شاٹس بھی آئے واٹس ایپ کے سامنے, پھر اس کے بعد آڈیوز بھی آئیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ٹائمنگ بڑی کروشل ہے, بالکل سینٹ انتخابات کی رات یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ منظر عام پہ آتی ہیں. کیا یہ اور نقب زنی ووٹوں پہ ہونے کے لیے ہماری پی ڈی ایم کی قیادت میدان میں اتری ہوئی ہے, ان کو یہ بار بار باور کروایا گیا کہ یہ جو پروسیس ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے ضروری ہے, اور وہ اب سمجھ آئی کہ کیوں وزیر اعظم کی آواز سن رہے تھے, وزیر اعظم کی خواہش کی تکمیل کیوں نہیں ہو رہی تھی, اور کیوں جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ کی طرف اپوزیشن آنے سے لیت و لال سے کام لے رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے مطلوبہ نمبر نہیں ہے ووٹ کے, اور وہ یہ چیز نہیں جیت سکتے, لیکن چونکہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نامینیٹ کرنا جو ہے خود ایک بدنیتی پہ مبنی عمل تھا, اور وانٹیڈ تھا, اور جان بوجھ کے کیا گیا کہ جو نمبر کم ہے لیکن ہم ان کو نوٹوں سے خریدیں گے, لوگوں کے ضمیروں کا سودا کریں گے. اور فردوس صاحبہ کل ہم نے چیز یہ بھی دیکھی, کل جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد علی حیدر گیلانی صاحب منظر عام پر آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ اون کرتے ہیں کہ ہاں جی ویڈیو میری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو کام ہے ووٹ مانگنا, میں تو ووٹ مانگوں گا, تو اس میں بری بات کیا ہے, آپ اپنے لوگ کو سنبھالیں. تو یہ جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالیں, تو یہ اپنے لوگوں کا پتہ چل پائے کہ کون سے 4 ایسے اراکین قومی اسمبلی تھے جو کہ ان سے مل رہے تھے, بار بار مل رہے تھے. دیکھیں وہ پارٹی کی سطح پہ ساری انفارمیشن آ چکی ہے, اور وہ تمام جو ریلیونٹ ممبرز ہیں انہیں باور کروایا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے, اور آج ان پہ گہری نظریں ہوں گی, کیمرے کی نظر بھی ہوگی, ہماری بھی نظریں ہوں گی, اور پارٹی ان کو ان کے عمل کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے, اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو عمل ہے جس میں ووٹ مسترد کرنے کا, اور خاص طور پہ
हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के साथ, कैंडिडेट के जो बेटे हैं उनके साथ जो गठजोड़ है हमारे मेंबरान का, उसके पीछे पस पर्दा हकायत क्या है। हम जो अवेलेबल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है हुकूमत का, उसके ज़रिए भी मदद ले रहे हैं और अल्टीमेटली उन अफराद को बेनकाब करेंगे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश में हिस्सेदार बनने के लिए जो ये स्याह अमल करने की कोशिश की। और अल्टीमेटली जो इलेक्शन कमीशन के पास अब पिटीशन ले गई है पीटीआई, जी जी, इलेक्शन कमीशन ने भी उसका नोटिस लिया है। हम ये तवक्को करते हैं कि हकायक पे मबनी इस अमल को देखा जाएगा जी। और अल्टीमेटली ये जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी और जो हमारी पीटीआई की क़यादत की आवाज़ को नहीं सुना गया और अल्टीमेटली इस किस्म के मकरूह अमल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये वज़ीर आज़म का जो बार बार अज़म को दोहराना है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैल्टिंग से हो और साफ शफाफ और मुनसफाना तरीका इंतखाब और होना भी ऐसे चाहिए। अच्छा फिरदौस साहब, ये बताइएगा कि अभी तो इन 4 अरकान कौमी असम्बली, इनके वाले से तो पता किया जा रहा है, फिर पार्टी पॉलिसी के तहत उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कल हमने देखा कि कल एक और मैंने उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, वो काफ़ी ऐसे नाराज़ थे और वो ये कह रहे थे कि अब्दुल हफीज़ शेख को वो वोट नहीं देंगे। मैं बात करूँ आमिर लियाकत साहब की, तो ये तो वो थे जो कि पीछे से मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे आमिर लियाकत साहब, ये नाराज़ हैं, इनको मनाने के लिए कुछ किया जा रहा है वैसे? देखिए, जब कहीं इलेक्शन का मौसम आता है तो वहाँ रूठने मनाने की भी अदाएं आती हैं और ये इस सियासत का हिस्सा है। और सियासत के हुस्न में ये शामिल है कि जिसको अपनी अहमियत का पता होता है और वोट जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट टूल है और ऐसा मौसर हथियार और औजार है कि जिसको इस्तेमाल करने के लिए हर मेंबर जो है वो वक्त आने पे अपने दाव पे इस्तेमाल करता है। तो रूठना मनाना सियासत के अंदर शामिल है। जो लोग रूठे थे उनको मना लिया गया, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, जिनकी जो है वो नाराज़गी है उनको हमने दूर कर दिया और अल्टीमेटली पीटीआई एक फैमिली है और ख़ानदान के तमाम अफराद जो हैं अपनी इज्जत और दिफा के लिए। चलें फिरदौस अहमद, देखते हैं कि आज कहीं आपके लिए कोई सरप्राइजेस तो नहीं है। वैसे जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से कल रात के बाद आने वाले हालात है, लगता नहीं है कि कोई सरप्राइजेस होंगे, लेकिन ये तो शाम तक जरा सूरत हाल सामने आएगी कि सरप्राइजेस किसके लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ये शफात एक सवाल का जवाब मुझे दें। ये आप जो सरप्राइजेस की बात करें, कल तो जितने भी हम लोगों को देख रहे थे सब में कॉन्फिडेंस बलाका था, चाहे वो अली हैदर गिलानी साहब हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और वो बार बार सरप्राइजेस की बात ही कर रहे थे। अब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें या फिर हुकूमती नुमाइंदों की बॉडी? मैं तो हुकूमती नुमाइंदों की बॉडी लैंग्वेज की बात होना यही चाहिए शफात, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है। कल रात अगर एक तो ये वाली वीडियो थी, फिर एक ऑडियो कॉल भी है जनाब नासिर हुसैन शाह साहब की, वो भी मंजर आम पे आई है जनाब। उस नासिर हुसैन शाह साहब वाली ऑडियो कॉल में क्या हो रहा है, पहले आपको वो सुनवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूँगा खुद ही। इनको पता है इनकी मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे हर लिहाज से। ये बात करें कैप्टन साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं। जब हमसे पूछा गया, कयूम सुमरो का नाम लिया गया और आपका लिया गया, तो हमने कहा नहीं, हम नासिर शाह साहब से बात करेंगे, हमें उस पर एतमाद है। एक सेकंड नहीं सोचा, आपके नाम पे टिक लगाया। लेकिन साईं हमें बाद में कुछ काम नहीं करना, हम आपसे वैसे प्यार मोहब्बत में हम आपसे काम ले लेंगे, इसको इस डील का हिस्सा ना बनाएं। जो आपने मुझे इज्जत दी इस मामले में, आपने फिक्र है
साईं हम अब आपके पेरोल पे हैं, हम आपके पैनल पे आ जाएंगे, हम 4 सॉलिड लोग हैं और हाँ हमने बड़ा रीजनेबल कहा है और हम उस पे बस अड़े हुए हैं। आवाज थोड़ी कट रही है। एमक्यूएम वालों से तो गिरे पड़े नहीं है ना, लेकिन हम फिर भी एक रीजनेबल वो कर रहे हैं। देखें अदा सुने, ये ज्यादती है। हम जो ना जिसको कहते हैं सर हथेली पे रख के आपके साथ खड़े हो रहे हैं, खुदा जानता है, ठीक है। और आइंदा भी साईं आइंदा भी खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बस आप इसको जो हम कह रहे हैं उसको ओके करें, बाकी आगे कोई एक काम हम भाईबंदी में कर देंगे। 5-10 से ज्यादा हो जाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल की फाइल नहीं है, वो मैं कर दूंगा जल्दी। हाइड्रेंट है, दीगर सर कुछ नहीं सर, हमें और साईं और कुछ नहीं। देखिए आप भाई हैं, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा आपसे बहस करना। वायदे से कह रहा हूँ कि आप इससे ज्यादा हो जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा खैर है, जल्दी नहीं है, आप 1-2 घंटे में कर लें, फाइनल कर लें, टक लगाएं। किस कदर इज्जत और एहतराम और प्यार से ये भाव ताव, ये बागिन का अमल जारी था, ये तो आपने सुना। जब ये वीडियो सामने आई अली हैदर गिलानी साहब की और ये वीडियो मीडिया पे मंजर आम पर आई, तो उन्होंने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो का एतराफ़ भी किया कि वीडियो में वो हैं, और साथ में उन्होंने बोला कि इस वीडियो में पीटीआई के अरकान जो मौजूद हैं वो उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट ना दें। तो वो उन्हें बता रहे थे कि वो वोट ज़ाया कैसे कर सकते हैं ताकि ना वोट उनको जाए ना वोट इनको जाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये मेरा हक था, ये कहना था अली हैदर गिलानी का। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मेरे हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, कई दफा मैं मुलाकात कर चुका, उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया, हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते, हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। एक दो नहीं, वो ज्यादा मेंबरान थे। अगर वो निशान लगा हुआ बैलेट दें, गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें, ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। मैंने कोई गलत अली हैदर गिलानी ने क्या जस्टिफिकेशन दी, तो आपने सुनी। इनके वालिद जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, जिनके लिए भी वोट भी मांग रहे थे, वो अब से थोड़ी देर पहले कौमी असेंबली में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं सेनेट के इंतखाबात के लिए। उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब कितने पुर उम्मीद आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं, अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब कितने पुर उम्मीद आज आप? यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वजीर आजम, उनसे सवाल किया जाता है जनाब कितने पुर उम्मीद हैं? कॉन्फिडेंस से कहते हैं हम जीत चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बॉडी लैंग्वेज, यही तो जनाब जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप इसको। कितने तपाक से, कितने कॉन्फिडेंस से वो आए हैं जनाब। और उन्होंने अपना वोट कास्ट करने से पहले जो गुफ्तगू की मीडिया से हमने आपके साथ शेयर की, कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। शफात, ये वो सूरत हाल है जिसमें बोलना कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जीत चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जी वोटिंग का अमल तो जारी है। ये वो लोग नहीं कह सकते जिनकी अपनी पार्टी में उतने अरकान मौजूद है, जिनका वोट उनको सेनेटर बनाने में काफ़ी है, वो नहीं कह सकते हम जीत चुके हैं। क्योंकि जो मंडी का जो भाव ताव चल रहा है, जिस तरीके से आपने वीडियोज़ देखी कि किस तरीके से बात की जा रही है, किस तरीके से ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ सिंध ने बल्कि बलूचिस्तान ने, पंजाब का तो मामला हल हो गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी कोशिश की जाती है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तमाम तो सूरत हाल पर हमने नज़र रखी हुई है। हम आपको आगाह बगाह आगाह करते रहेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे कौमी असेंबली, जहां सेनेट का इलेक्शन के लिए जो पोलिंग का अमल है ये जारी है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, ये बताएगा कि अब तक किस किस ने वोट कास्ट कर लिया है? जाहिद, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे रब्ता करें, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही। हमने जो नाजरीन है हम उनको बताते चलें कि पोलिंग का अमल है, वोटिंग का जो अमल है ये जारी है। सुबह 9 बजे अमल शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अंदिल अब्बास ने वोट कास्ट कर लिया है और अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी यहाँ पर आए वोट कास्ट करने के लिए अपना। और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप जीतेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम जीत चुके हैं। खैर, जाहिद मशवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। जाहिद, ये बताएगा कि अब तक कौन कौन से MNAs ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है? ठीक 9 शायद हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा राब्ता करें। फिलहाल अपने नाज़रीन को बताते चले PTI से अंदलीब अब्बास अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं और ये जो वोटिंग का सिलसिला है ये जारी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नुमाइंदगान वो बैलेट बॉक्स के नज़दीक आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के बाद वापस अपनी पार्टीज में जाके
डिस्कस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा किसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जनाब हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूद हैं और दोनों आपस में बजाय बड़े खुशगवार मूड में आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल शफात, क्योंकि सबसे तगड़ा मुकाबला, सबसे कांटे का मुकाबला जिसके हवाले से कल हमने देखा कि बड़ी तहलका खेज वीडियोस भी सामने आई जिस मुकाबले के बारे में, वो यही मुकाबला है हफीज शेख साहब जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं, हुकूमत के कैंडिडेट हैं, और साथ में यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं और ये कैंडिडेट हैं पीडीएम के। ये लाइव मनाज़िर है जो इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़ा खुशगवार माहौल लग रहा है, बिल्कुल उससे बरक शफात जो कि कल हमने देखा सिंध असेंबली में जिस किस्म का माहौल था, उससे तो काफी पढ़ा लिखा, बड़ा सुलझा, बड़ा जबरदस्त माहौल लग रहा है, बड़ा फ्रेंडली माहौल लग रहा है। जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कल रात तूफान मौजूद था, उसके मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि आज सुबह होते ही कोई धींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन ये तो बज़ाहिर सूरत हाल कंट्रोल में है और बड़े मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता अंदाज में आप देखिए कतार बना के खड़े हुए हैं नुमाइंदगान और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़े खुशगवार माहौल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के को हमने एक साथ देखा और जो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। खैर जनाब, ये सेनेट का इंतखाबात का सिलसिला जारी है और हमारी इस पे डिस्कशन भी जारी है। इस दौरान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब फारूक सत्तार साहब, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फारूक भाई, आप ये देख रहे हैं जिस तरह से मनाजिर चल रहे हैं, एक बड़ा वाजे डिफरेंस है इन इंतखाबात में। जितना सस्पेंस थ्रिल कल रात से लेके अब तक हुआ है, गुज़िश्ता किसी सेनेट के इंतखाब में ऐसा नहीं हुआ। अमूमन पोलिंग के दिन पे सरप्राइज, यहाँ पोलिंग से पहले सरप्राइजेस आ रहे हैं। आपके लिए नई बात है? मैं समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हर नए जो सेनेट के इलेक्शंस आते हैं उसमें जो हमारी मजमूई मॉरल बैंकरप्सी है ना, वो और ज़्यादा एक्सपोज होती चली जा रही है और उसमें फिर उसका एहसास भी नहीं, उसके बारे में कोई सोचो फिक्र नहीं और ढिठाई के साथ जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं उसका कोई भी उज़र या जवाज दे के जो है वो कन्नी मारी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी मिसाल मजमूई तौर पर कायम नहीं हो रही है ना। अब देखें ना, सिंध में भी इस वक्त जो सूरत हाल है कि दो तरह की सुपर लीग्स हो रही हैं। एक है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके खिलाड़ी भी होटल में ठहरे हुए, और दूसरी सेनेट सुपर लीग हो रही, उसके खिलाड़ी भी अब होटल में ठहरे हुए। बढ़िया, जबरदस्त बात। जरा आपको नाजरीन बता देते हैं कि सिंध असेंबली में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है और आज क्या मुतवक्के नताइज हो सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। बिल्कुल शफात, क्योंकि सिंध में हमने देखा कि सिंध में भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जारी है। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है सिंध असेंबली के और साथ में सिंध में कितनी पार्टीज हैं, कितने वोट दरकार है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। सिंध असेंबली में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों समेत खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशिस्तों के लिए चुनाव हो रहा है। सिंध असेंबली की 168 नशिस्तों में से जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 20 वोट दरकार होंगे, जबकि तनासुब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त के लिए 56 वोट दरकार होंगे। इस वक्त सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 99 है। ऐवान में तादाद के लिहाज से तहरीक इंसाफ 30 अरकान के साथ दूसरे और MQM पाकिस्तान 21 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। सिंध असेंबली में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 14, तहरीक लब्बैक के 3 और मुत्तहिदा मजलिस अमल का 1 रुकन है। 7 जनरल नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध से 4 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी मुतवक्के है। टेक्नोक्रेट नशिस्त की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार है। सिंध से टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिलने का इम्कान है। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। पीपल्स पार्टी की परवशा खान, रुखसाना शाह और MQM की खालदा अतियब में मुकाबला है। सिंध से खवातीन की 2 में से 1 नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी का इम्कान है। और कल जनाब आपने देखा, अभी तो खैर आपने देखा कि क्या सिचुएशन है सिंध असेंबली के और सिंध से कितने वोट दरकार है और सिंध से कितने जो सेनेट से वो इलेक्ट करने। लेकिन कल शफात जो सिंध असेंबली के जो मनाजिर सामने आ रहे थे, जो धींगा मुश्ती, जो मार कुटाई, जो कुटस चढ़ रही थी स्पेसिफिकली उन लोगों की, और जब अभी करीम कबूल साहब वो तो जब कल आए तो हमने देखा कि क्या उनके साथ वाल भाई कपड़े जो इनके वो भी तकरीबन फट के, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इनके पार्टी के बाकी लोग थे, जो इनके कॉलीग्स थे, वो काफ़ी से नाराज थे, लीरो हो गए एक तरह से। अजीब बात है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जनाब जो गबोल साहब हैं उनको PTI के अरकान ने मारा। PTI के अरकान वीडियोस बना के दे रहे हैं कि जी इनको पीपल्स पार्टी के अरकान ने मारा, लेकिन हर दो सूरत में पिटे जो है वो गबोल साहब है। फिर उसके बाद वो ये आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे
وہ اس کے بعد تقریباً انتہائی ایمرجنسی حالات میں ان کو تقریباً بہت ہی پیار عزت احترام کے ساتھ ان کو ایک گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور اس گاڑی میں ڈال کے ان کو میں کیا کہوں بھگا دیا جاتا ہے، لے جائے محفوظ مقام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب آج اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں یہ تینوں جو ناراض اراکین جب آئے تھے تو ایک ساتھ آئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کریم گبول صاحب اندر آئے تو ان پر پارٹی کے جن کے کولیگس تھے they were quite furious، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لڑائی وہاں پہ شروع ہوئی اور پھر ایسی لڑائی تھی کہ پھر ایک دوسرے کو مارا بھی، پھر ہم نے لیکن پھر جب ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا، اگر پلیز ان کا سارٹ ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ سارٹ ان کا ضرور چلائے کہ ایگزیکٹلی کریم گبول صاحب نے کہا کیا تھا۔ مجھے پی پی والے اغوا کر رہے ہیں، مجھے ووٹ نہیں دینا پی پی کو۔ بولو آپ بولو بھائی، یہ صرف پی پی والے چلو۔ شفاعت آپ نے دیکھا کل نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، انہوں نے بولا جی کہ میری تو کل پرسوں رات جو ہے وہ کریم قبول سے بات ہوئی ہے کیونکہ ہمارے تو آگے سے برادری بھی ملتی ہے، انہوں نے بولا میں تو اپنے گھر پہ موجود ہوں، مجھے تو کسی نے اغوا نہیں کیا، لیکن کل جب یہ سندھ اسمبلی میں آئے ہیں کریم قبول صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور میں ان کو ووٹ نہیں دینا مدیہ چاہتا۔ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے یہ مناظر سمجھ میں نہ آنے والے ہیں۔ فاروق بھائی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا مناظر ہے؟ ایک ہوتا ہے اغوا اور ایک ہوتا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ اغوا ہو جانا۔ اچھا رضاکارانہ اغوا، رضاکارانہ طور پہ اغوا ہو جانا یہ کیسے ہوتا ہے فاروق بھائی؟ کچھ موویز بھی دیکھی ہوں گی آپ نے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ رضاکارانہ اغوا ہو جاتے ہیں تو اپنی ہی فیملی یا اپنی ہی پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ جو سینٹ کے الیکشن کے موقع پر نہیں، اگر واقعی میں یہ ساری کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا، آرٹیکل 218 اس کے کلاس 3 کے تحت انتخابات کرانے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پارلیمنٹ کو یہ کہے ایسی لیجسلیشن کرے، ساری پارٹیاں اس پہ اتفاق کریں کہ جو حصہ بقدر جثہ جو پارٹی کی پوزیشن ہو، بھائی دیکھیں نا جب صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہیں تو پارٹی کا چیف ہی ان کو ٹکٹ دیتا ہے نا، وہاں سلیکشن ہوتی ہے۔ جب ایم پی ایس کی اور ایم این ایس کی سلیکشن پارٹی کرتی ہے تو پھر ان ایم پی ایس کا جو سینٹ کا الیکشن وہ انڈائریکٹ اس کا بھی سلیکشن پارٹی کا ہونا چاہیے، پارٹی نام دے دیں اور پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن پہ کر دیں، مطلب کوئی راکٹ سائنس یہ سوال ہے اور یہ پہلے سے اچھا یہ والی بات پوری اس سینٹ کے الیکشن یہی تو معاملہ ہے نا، سیکریسی آف بیلٹ، پھر سپریم کورٹ نے تھوڑا سا گھما دیا، چورنگی گھمائی، لیکن آپ یہاں ضمیر کو مس کر رہے ہیں، جو ہے وہ سیکریسی کی بات نہیں ہو رہی، وہ پھر ای سی بھی ڈیسائیڈ کرے، اس کے کورٹ میں بال ڈال دی، اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ لیکن ہوا۔ فاروق اس میں آپ ایک چیز مس کر گئے وہ ہے ضمیر، تو ضمیر کی کہیں یہاں پہ گنجائش ہی نکلتی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ضمیر کو کیوں ہم بلا وجہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، کوئی سسٹم ہی ایسا ایوالو کر دیں نا کہ جس میں ضمیر خرید و فروخت کا موقع کم ہو، پہلے ہم وہ کام کر لیں، لیجسلیشن، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن، اصلاحات، یہی تو چیزیں کرنی، اور اسی سے تو پھر تبدیلی واقعی میں آئے گی۔ بھائی پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی سیل قائم کرے، پھر الیکٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، پھر اسی طرح الیکشن میں جو اخراجات ہوتے ہیں مین الیکشن میں اس پر بھی تو پارٹیاں اپنے اپنے اس میں قدغن لگائیں نا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کی جمہوریت بہتر زیادہ فعال ہو۔ کورٹ کی جو رائے آئی ہے اس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی ایگزیکٹو ادارے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں اس حوالے سے، تو اگر الیکشن کمیشن چاہے تو اس قسم کے معاملات تو خالصتاً جو ہے یہ کیش فلو ہے، یہ تو منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، ایف آئی اے کے ذریعے بھی تحقیقات کرائی جا سکتی ہے، لیکن کبھی ہوا نہیں ہے ایسا، آئینی طور پہ تو ان کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن کبھی ہوا نہیں ہے ایسا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلی مرتبہ جیسے سب سے بڑا وکٹم ایم کیو ایم تھی اور لوگوں نے مبینہ طور پر مطلب لوگوں نے پھر گواہیاں دیں کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وزراء کی گاڑی میں آئے تھے، وہ تو ویڈیوز بھی ہیں فاروق، ہاں وہ تو ویڈیوز بھی اس کی پھر ہیں، لیکن ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات بعد میں نہیں ہوئی، اور رات گئی بات گئی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ صحیح، تو پھر فاروق بھائی ہمارا آپ کا ساتھ تو رہے گا، ڈسکشن چلتی رہے گی، فی الحال خواتین حضرات وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر قومی اسمبلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے، ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے نمائندے حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن، اس وقت کیا سچویشن ہے اور کن لوگوں نے اب تک اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے؟ بالکل مدیہ، جو پولنگ کا آغاز جو ہے وہ صبح 9 بجے ہو چکا تھا
اور ساتھ ہی شروع سے ہی ہم نے پہلے تو اس طرح دیکھا تھا کہ زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو رش ہے وہ اس وقت بہت سے ممبران ایوان کے اندر جو ہال ہے اس کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ جو امیدوار ہیں عبدالحفیظ شیخ جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ایوان میں پہنچ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ان میں علی نواز آوان ہے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، جو نوید قمر ہیں سید نوید قمر انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، ذہن قریشی ہیں، امجد نیازی، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اراکین ہیں وہ اس وقت لائن میں کھڑے میں ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم جو اس وقت ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے یہ ہدایت جاری کی کہ گو کہ یہ اراکین اسمبلی ہیں، کوئی نارمل ووٹرز نہیں ہیں، تاہم ان کو کہا کہ جو ممبران اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں وہ باہر تشریف لے جائیں۔ 341 ٹوٹل ووٹ ہیں جو کاسٹ ہونی ہے، کیونکہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، وہاں پر ری پول ہونا ہے، تو ویسے تو اس ہاؤس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ 342 تھی، لیکن ایک ممبر اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی جماعت کا کوئی بھی رکن اس ٹائم جو ہے وہ MNA نہیں ہے ڈسکا کی جو نشست ہے، تو 341 ہے، یعنی 171 ووٹ جو بھی امیدوار جو ہے ان میں سے لے لے گا، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی لے لیتے ہیں یا خواتین کی نشست کے اوپر جو ہے یا عبدالحفیظ شیخ لیتے ہیں، یا خواتین کی نشست کے اوپر بھی PTI ورسز PDM کا جو کانٹیسٹ ہے، یہ کانٹیسٹ جو ہے یہ ہونا ہے۔ تاہم اور اس حوالے سے حسن فواد چودھری صاحب ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور وہ بڑے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ 180 کا عدد حاصل کر لیں گے۔ اس وقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، حسن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین کو بتاتے چلیں جناب کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو آپ مناظر اسکرین پہ دیکھ رہے تھے وائل حسن ایوب واز ٹاکنگ ود اس، ہمارے نمائندے، تو شیخ رشید احمد صاحب جناب اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں جناب فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جب اپنا وہ ووٹ کاسٹ کر کے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے سر؟ حفیظ شیخ صاحب بائی فار جیتیں گے، گیلانی صاحب ہاریں گے۔ اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جناب قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو بتا رہے تھے جناب اب سے کچھ دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ بالکل شفاعت، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس سے پہلے جب گفتگو چل رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ صداقت عباسی صاحب کھڑے تھے، ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری جو کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم حسن سے دوبارہ سے جانیں گے ان افراد کی لسٹ جو کہ اب تک اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ جی حسن۔ جی بالکل، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ فیصل واڈا نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، اسی طرح بہت سے ممبران جو ہیں وہ اس وقت لائن میں کھڑے ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر تو یہ 341 جو ہے وہ ٹوٹل ووٹرز ہیں، اور اس میں جو 171 کا جو بھی میٹ کر لے گا، یعنی 171 ووٹ جون سا امیدوار لے لے گا وہ کامیاب قرار پائے گا۔ اور بنیادی طور کے اوپر جو دو نشستیں ہیں، ایک خواتین کی نشست ہے اور ایک جنرل سیٹ ہے، تو جنرل سیٹ کے اوپر تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور جو عبدالحفیظ شیخ ہیں یہ مد مقابل ہیں، جبکہ خواتین کی نشست پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فوزیہ ارشد ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یا PDM کا ہم حسن ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں سینٹ میں، یہ آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل جی، مناظر آپ نے دیکھے، اور شیخ رشید صاحب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب بھی وہ آئے، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ زاہد مشفانی جو ہے ہمارے نمائندے، انہوں نے بھی تمام تر صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کے باہر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں۔ جی زاہد۔ ووٹنگ کا عمل جاری ہے، ٹھیک 9 بجے ووٹنگ کا آغاز کیا گیا اور اب تک تقریباً 50 سے زائد جو ووٹ ہیں وہ کاسٹ کیے جا چکے ہیں، اور اس دوران چیف الیکشن کمشنر بھی یہاں ایوان میں پہنچے، اور دونوں امیدوار یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ بھی ایوان میں موجود ہیں، اور وہ آپس میں گپے بھی لگاتے رہے۔ وہ امیدوار جو باہر ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں یہاں خوشگپیوں میں دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ فواد چودھری اور
यूसुफ रजा गिलानी भी आपस में खुशखबरियां लगाते रहे। एक अच्छे माहौल में ये अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन से भी मैंने इस दौरान रब्ता किया और इलेक्शन कमीशन से बताया गया कि कंट्रोल रूम वहाँ पर लोग मौजूद है, लेकिन इस इंतखाब के हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। स्मूथ अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में एक अमल जारी है। इस दौरान जो लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जफर इकबाल ने उनको हिदायत की कि वो बाहर जाएं, क्योंकि लोग वोट कास्ट करके जो अराकीन हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं और गपशप भी लगाते रहते हैं। इस तरह वोटिंग के अमल में खलल भी पैदा हो सकता है। बार बार हिदायत भी जारी की जाती हैं। जब इंतखाब का अमल शुरू किया जा रहा था तो उससे कबल तमाम अराकीन को बताया गया कि वोट किस तरह पोल किए जाएंगे और अगर वोट पर कोई निशान पाया गया या कोई गलती की गई तो इससे वोट मुस्तरद भी किए जा सकते हैं। ये अमल 5 बजे तक बिला ताखीर जारी रहेगा, जिसके बाद वोटिंग जो है, जो वोट मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर काउंटिंग की जाएगी। सही, ठीक है। जाहिद नशवानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जैसे थोड़ी देर पहले अपने नाज़रीन को दिखाया भी, शेख रशीद साहब ने अपना वोट कास्ट किया, उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने अपना वोट कास्ट किया। अब देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी गालिबन यहाँ पर अपनी से थोड़ी देर में शफात वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। जैसे कि मदिया आपको बता रही हैं कि इस वक्त ऐवान में नुमाइंदगान जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हम आपके सामने जनाब ये जो सूरत हाल रख रहे हैं, ये सूरत हाल जारी है, लेकिन ये वक्त हो गया है जनाब हेडलाइन सुनने का। बिल्कुल जी, हेडलाइंस के बाद हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपको बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेनेट के इंतखाबात में 37 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, कोटा बलूचिस्तान असम्बली और साथ में सिंध असम्बली में हमने देखा कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और ये पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, जो कि इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा शाम 5 बजे तक। डिफरेंट शहरों में क्या सूरत हाल है, कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब, वो हमें आगाह करेंगे। कोयटा की सिचुएशन से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अतिया इकराम, और साथ में कराची में सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडी, वो बताएंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल जो हैं वो हमें आगाह करेंगे। तो सबसे पहले जनाब रुख करते हैं हसन अयूब आपका, जरा बताइएगा सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद में होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के दरमियान। जरा ये बताइएगा कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका एक भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा वोट डालने के लिए? देखिए शफात, ये तो हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी इस टाइम कौमी असम्बली से थोड़ा सा बाहर आया हूँ जहाँ से लाइव करने की इजाज़त है। अच्छा। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से इतलात हैं कि वो इस टाइम जो है वो कौमी असम्बली की जो बिल्डिंग है उसके अंदर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर ही बैठ कर वो अपने जो है चैम्बर के अंदर बैठ कर जो इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। ताहम इस वक्त तक 50 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी जो है वो दौरा किया है और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का अमला है जो वो भी इस वक्त ये सारे इंतखाबात जो हैं इसका इनेकाद करा रहे हैं। इस वक्त तक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वोटें भी कास्ट हो रही हैं, रश भी है, इंटरेस्ट भी है और हर एक को तजस्सुस भी है कि बिलखुसूस जिस नशिस्त का आपने जिक्र किया है, जो मुकाबला है यूसुफ रजा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान, गो के दूसरी जो खवातीन की नशिस्त है वहाँ पर भी मुकाबला हो रहा है और उसमें भी पीडीएम और पीटीआई जो है वो मद्दे मुकाबल है, लेकिन सबकी नज़रें जो मरकूज़ हैं वो ये यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख का जो मुकाबला है इसके ऊपर है। सही। हुकूमती अरकान जो है वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं और वो बड़े पुरुमीद हैं। जैसे फवाद चौधरी ने जो है वो क्लेम किया है कि 180 के करीब जो है जो हुकूमत है वो बआसानी ये नशिस्त जीतेगी और हालात जो इस वक्त नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से उनकी जो पेशन गोई है वो गलत साबित नहीं होगी। सही, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब यहाँ पर आए और उनसे पूछा कि बताएं कि क्या आपको लगता है आप जीत जाएंगे, तो उन्होंने बोला हम जीत चुके हैं। खैर इस हवाले से माहिराना राय तो हम जानेंगे। हमारे साथ फारूक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब हम सिंध की तरफ रुख कर लेते हैं। अरबाब चांडी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अरबाब भी बताएगा कि सिंध असेंबली में पोलिंग का अमल कहाँ तक पहुंचा और कौन कौन सी पार्टी के अरकान अब तक आ चुके हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए। जी निदा, इस वक्त सिंध असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमायतों के तकरीबन तमाम अरकान असम्बली इस वक्त सिंध असम्बली में पहुंच चुके हैं। अच्छा। यहाँ पर MQM का जो अरकान असम्बली है वो फैसल सब्जवारी के साथ
आप जरा मुस्कुराए तो सही। फैसल सब्जवारी के साथ यहाँ पर आए और वो अपने क़यादत में जो है उनको अराकीन को लेकर आए और इसके साथ जो है फिर पीटीआई के अराकीन जो कि मिठाई यहाँ तकसीम कर रहे, ये देख रहे हैं, ये मिठाई का लाल डब्बा है जो कि पीटीआई के अराकीन ने यहाँ तकसीम किया है। यानी अभी इलेक्शन मुकम्मल हुआ नहीं, प्रोसेस मुकम्मल हुआ नहीं, लेकिन इससे पहले ही वो जीत इनकी हो गई। क्या हुआ? अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ, पहले से मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये मिठाई इसलिए है कि शाम को इलेक्शन का नतीजा आने के बाद शायद खुशी में हम वक्त ना दे सके। आपको नताइज का पता है ना? हमें नताइज का अच्छी तरह पता है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। और हम किसने बताया आपके सब उम्मीदवार जीत जाएंगे? हमारे सब उम्मीदवार जीतेंगे, हमारे सारे अराकीन वोट डालेंगे और बहुत सारे वोट हमें उसके अलावा भी पड़ेंगे। और मैं आज अगर बहुत सारे और आप दावा कर रहे हैं आपको पीपी के वोट पड़ जाएंगे? बहुत सारे लोग वोट डालेंगे पीटीआई को, वो अपनी पार्टी से इतने बेजार हैं कि वो बहुत सारे लोग वोट डालेंगे। फिर ये तो आप भी माना खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ज़मीर के मुताबिक, जब उनका ज़मीर हो सकता है तो हम भी कह सकते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक वो वोट डालेंगे। 2 विकेटें चली गई, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे आपको। शाम को वो दोनों लोग खुद बताएंगे उन्होंने किसको वोट दिया था। और मैं मुराद अली शाह से कहना चाहता हूं कि हम आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा, ये देखिए पीटीआई वाले अभी से ही मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे। और मैं पीटीआई के अराकीन से गुजारिश करता हूं कि हम लाइव जा रहे हैं, 1 मिनट के बाद आप मीडिया डाक करें। हम लाइव जा रहे हैं, इस वक्त आप दिखा सकते हैं कि मीडिया यहाँ पर 3 अराकीन है, असेंबली अली जी और जो है उमेर और उसके तमाम तो सूरत हाल पर नजर रखे। और बाप क्योंकि हमारे शो में बीपर भी दे रहे, तो उन्होंने पीटीआई की जो मीडिया टॉक है ना वो भी थोड़ी देर के लिए रुकवा ली, इनकी मीडिया टॉक शुरू हो जाए। अतिया हमारी नुमाइंदा, हम उनकी तरफ चलते और जानेंगे बलूचिस्तान असेंबली में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अतिया। जी, पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ी गहमा गहमी जारी है। इस वक्त जो है अब तक ANP के ज़मर कचकज़ई जो हैं उन्होंने अपना पहला वोट कास्ट किया। उसके बाद तारिक मक्सी ने और अक़लियती नशिस्त पर दिनेश कुमार ने अब तक अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वक्फे से जो है वो तमाम अराकीन आते रहेंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करते रहेंगे। अब तक सिर्फ जो है वो बलूचिस्तान असम्बली में 3 वोट कास्ट हुए हैं। और दूसरी जानिब ये है कि वक्फे से तमाम जो अराकीन हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। 800 के करीब जो है वो पुलिस, ATF और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात हैं। इस हवाले से हम आपसे मज़ीद तफसीलात जानते रहेंगे जैसे जैसे पोलिंग का मामला आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल फारूक भाई आप हमारे साथ मौजूद, आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल। सिंध असम्बली में मिठाइयाँ बट रही हैं और वहाँ पे जनाब इनफैक्ट बल्कि सिंध असम्बली में हमारे पास एक विजुअल आया है, सिंध असम्बली में सेल्फियाँ भी खींच रही हैं। अगर हम वो विजुअल प्ले कर सकें कि सिंध असम्बली में पोलिंग के दौरान आप देखें, ये गालिबन खुर्रम शेर जमान साहब हैं इस तस्वीर में और ये देखें जनाब, और उन्होंने ज़रा शहजाद कुरैशी इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, और ये वोट कास्ट करने के बाद बड़ी उन्होंने ताकत का मुजाहरा किया। बिल्कुल जी, आप गालिबन खुर्रम शहजाद साहब की बात कर रहे थे, जो बड़ी ताकत का मुजाहरा किया। खैर खुर्रम शेर जमान साहब, खुर्रम शेर जमान साहब, जी फारूक भाई हमारे साथ मौजूद। जी मैं ये समझता हूँ कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट तो एक जगह पर, लेकिन लोगों ने तो अपने अपने नताइज का ऐलान कर दिया। मिठाई बढ़ गई। उन्होंने अपने कितने वोट कास्ट होंगे किसके फेवर में, फवाद चौधरी ने वो कह दिया। और यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि अभी तो बिसात बिछी नहीं लेकिन वो जीत गए हैं। तो नताइज पर कोई सीक्रेसी नहीं है, उस पर दावे हो रहे हैं। सही, जो सीक्रेसी वो बैलेट ही अब रह गई है। दो चीज़ों का दो वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं जब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हमने देखा कि पहले पूरी कैंपेन भी चलना शुरू हुई और उसके बाद जब पोलिंग भी हो रही है। 2 वर्ड्स, एक तो ज़मीर और एक सरप्राइज़। आपको नहीं लगता ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये पूरे प्रोसेस को मतलब बड़े बुरे फेत में ले जाते हैं? मेरे ख्याल में सेनेट की जो डिक्शनरी है उससे लुगत से ये 2 अल्फाज निकाल दिए जाने चाहिए और रिफॉर्म्स पर सोचना चाहिए आइंदा अगर चीज़ों को ठीक करना है। और बुनियादी तौर पर जब माशरती इन्हतात भी बहुत ज़्यादा हो और सियासत से लोगों को रहनुमाई भी ना मिल रही हो, और तो फिर मैं समझता हूँ कि क़वानीन बेहतर बनाए जाए और सारी पार्टियों को एक्सपोज किया जाए कि भाई देखें एक चीज़ है जिसमें किसी को आजमाइश में ना डालें। मेरे ख्याल में ये मशवरा मेरा है
के मुतनासिब नुमाइंदगी पर तय हो जाए कि सेनेट की किसकी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो, मतलब वो नॉमिनेट हो सीट जाए, एलोकेशन हो जाए, सीट एलोकेशन हो अभी जाए। जो पंजाब असेंबली में भी जो हुआ है देखिए वो एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की उन्होंने, शायद पीटीआई ने अपनी एक सीट पीएमएलएन को दे दी है जिस पे उनकी लड़ाई की वजह से खरीदो फरोख्त होती, तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब को सेनेट के इलेक्शन की मंडी या नीलाम घर नहीं बनने देंगे। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने तो इसको आप क्या कहेंगे, ये एडजस्टमेंट हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुकमुका हुआ, क्या मुकमुका? अच्छा मुकमुका है, बिल्कुल आप कह रहे हैं वाज़ेह पीटीआई पीएमएलएन का मुकमुका? और आग और पानी का मिलाप, जमीन और ये आपने आसमान। बहुत बड़ी बात किया, पीटीआई पीएमएलएन हुआ ना, बिल्कुल हुआ ना। ये कैसे मुमकिन है कि उम्मीदवार कम, ढेर सारे लोगों ने कागजात जमा कराए थे और उसमें फिर सब वापस ले लेते हैं और बचते ही 11 हैं। अच्छा भाई पीटीआई को कंटेस्ट करना चाहिए था छठी सीट पर भी, उन्होंने वो अपनी छठी सीट पर गिव अप किया है। इसका मतलब है फिर हमजा शरीफ की जमानत भी हो जाती है। ये आप जो बड़े बड़े डॉट्स मैं आपको फारूक भाई एक खबर आपको सुना दूं, रिलेट कर रही है ना फारूक भाई खबर सुनानी है, पंजाब में आपका तबसरा भी चाहिए, हो गया है। फारूक भाई खबर सुनानी है, उस खबर पे आपका पार्टी को तबसरा भी लीड लेनी चाहिए। खबर ये है इस्लामाबाद से कि एमक्यूएम के तमाम अराकीन वो इकट्ठे होटल से निकले, इकट्ठे एक वैन में बैठे हैं, इकट्ठे असेंबली पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं और अब इकट्ठे वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो इनफैक्ट ये विजुअल ये देखें जनाब, ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लें कि ये तमाम एक कोस्टर में इकट्ठे आए, इसकी क्या वजह है? ये भी एक रिवायत है ना। अच्छा जब मोहतरमा, मतलब किसी का ज़मीर फरार ना हो जाए, ये वाली बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो तरीके हैं जिससे कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर अपनी ही पार्टी की बेएतबारी को आप एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा अब ये आप देखें ना कि भाई ये बताया जा रहा है, अच्छा अगवा करके कोई कैसे ले जाएगा? अगर कौमी असेंबली में आप वोट डालने जा रहे हैं और आपको सड़क क्रॉस करके आप पार्लियामेंट लॉजेस से सीधा आप पार्लियामेंट हाउस में पहुंच जाएं, तो उसमें बीच में से कौन आपको अगवा करके ले जा सकता, किसकी मजाल है? तो इसका मतलब है कि क्या बेएतबारी कि उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनको ये एहसास दिलाना है कि भाई वो पार्टी से कंट्रोल्ड हैं। मेरे ख्याल में ये एग्जैक्टली चीज़ रिपीट हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही हुआ है, मे भी शायद क्योंकि बाबर जो सेनेट के इंतखाबात की बात, होटल में रखना, सेनेट सुपर लीग के सेनेट के खिलाड़ियों को बबल, क्योंकि आप जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे पहले कि 2018 के इलेक्शन में तो आपकी पार्टी ने सफर भी किया वैसे हवाले से, तो क्यों नहीं वैसे मुझे फारूक भाई जब पता चल जाता है कि कौन कौन से एमपीज इसमें शामिल थे, कौन कौन से एमएज इसमें शामिल थे, तो नेम एंड शेम क्यों नहीं किया जाता? एक दो लोगों के नाम सामने आ जाते, नाम तो फिर बाद में हमें भी कहीं ना कहीं से मालूम हो ही गए और पीपल्स पार्टी के जराए ही ने बता दिया कि भाई उन्होंने किस किस पर जो है वो काम किया और बारीक काम हो गया। लेकिन अभी कि उसको आप लेके कहाँ जाएंगे? मैंने बहुत कोशिश की और FIA से भी कहा, इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा कि मुबैना तौर पे ये बात है और उनकी गाड़ी में ये लोग आए थे जो पीपल्स पार्टी की गाड़ी, उनकी वज़रा की गाड़ियों में आए थे, तो इनकी तहकीकात तो कर लें, उनसे कोई हल्फिया बयान ले लें, जो वज़रा थे उन्होंने कैसे फैसिलिटी, तो पैसों के लेन देन में मुलव्वस होते फिर क्यों नहीं आगे उनको नाअहल कर देते? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पैसों की लेन देन तो या फिर यहाँ पे ज़मीर आ जाता है, डेमोक्रेसी पैसों की लेन देन की प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है कि वो एग्जैक्टली आपको नहीं पता बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, कैश पे पैसा किसी ने दिया या किसी ने मुल्क में दिया, मुल्क से बाहर दिया, किसी ने टोयोटा गाड़ी पर अपना ज़मीर बेच दिया। मैं सिंपली ये कहता हूँ कि फ्लोर क्रॉसिंग में इस बात की शायद पाबंदी नहीं है कि सेनेट के वोट में जैसे ये 3 बागी अराकीन नजर आए पीटीआई, वो कह रहे हम नहीं देंगे फैसल वावडा को या फला को, तो इसका मतलब उन्हें मालूम है, उनके लॉयर्स ने बताया हुआ है कि पार्टी तुम्हें डी लिस्ट या आउस्ट नहीं कर सकती। ये हमारी बात बड़ी जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन एक जमीर सिक्योर बबल की भी जरूरत है कि जिसमें किसी का जमीर जो है वो फरार ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अब जरा आपको लेके चलते हैं खैबर मादर पिदर आजाद है। आपको खैबर पख्तूनख्वा लेके चलते हैं जनाब, हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल साहब वहाँ हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं और वो जो टोलियां या जो टोलियां जिन्होंने आना है वोट कास्ट करने के लिए वो आ रही हैं नहीं आ रही? बिल्कुल बात, लेकिन इससे पहले कि हम अपने नुमाइंदे की तरफ जाएं, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। वोट आपने कास्ट कर लिया, ये मनाजिर हमने देखे भी, और आज तो हम देख रहे थे कौमी असेंबली में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख साहब सामने खड़े थे, तो बड़ा दोस्ताना माहौल था, बड़ा कमाल माहौल था।
تو یہ ماحول جو پنجاب میں انہوں نے بنایا سارے ملک میں ہو سکتا تھا، ایسے ہی انہوں نے راول پنڈی کو مدر آف الیکشن اسلام آباد کو بنا دیا، اور اس میں بھی شکست کے بعد ان کو زیادہ نقصان ہوگا اور حفیظ شیخ جیتیں گے۔ اپنا پنجاب جہاں الیکشن کا بڑا دور پیٹا جا رہا تھا وہ دوسری بٹھا دی انہوں نے ٹوکرا رکھ کے، اور باقی صوبوں میں الیکشن کرا دیے اور ویڈیو نکل آئیں گے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ 5 بجے تک انشاءاللہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی اور بہتری کی فضا بن جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب نے دیکھا کہ آج جب یوسف رضا گیلانی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جیت جائیں گے، ہی واز ویری کانفیڈنٹ، انہوں نے بولا ہم جیت چکے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جی، جنت کے لیے مرنا بڑا ضروری ہے، اور سیاسی موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کے چہروں پہ، وہ ہارنے جا رہے ہیں، اور میں نہیں دیکھ رہا ان کو جیتتے ہوئے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شیخ حفیظ کا ووٹر ہوں یا میں نے عمران خان کے کہنے پہ کو ووٹ کاسٹ کیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دیکھ رہا ان کو جیتے ہوئے۔ لوگ ناراض شراز ہوتے ہیں پارٹیوں سے، پھر الیکشن کی رات راضی ہو جاتے ہیں۔ کل راضی تھے تقریباً پی ایم کے لنچ پہ سارے۔ شیخ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم خیبر پختونخوا میں 5 سیٹیں سیکیور کر سکتے ہیں، سرپرائز دے سکتے ہیں، سینٹر میں سرپرائز دے سکتے ہیں، سندھ میں تو خیر ان کے پاس مناسب تعداد ہے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی صفوں میں آج 2 سرپرائزز نکلے ہیں جنہوں نے میرے خیال میں شہریار شر صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ سرپرائزز کا عمل کیا ہے؟ یہ ضمیر کیوں صرف سینٹ الیکشن کے دن جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے جناب بغاوت کا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، ایک دفعہ لوگوں کو چھانگا مانگا بھی لگایا گیا تھا، ہمیں تو کوئی نہیں لے کے گیا، ہمیں ان کو پتا تھا کہ زندہ رہے تو ووٹ کاسٹ کریں گے آ کے۔ 2 بندے چھانگا مانگا بھی نہیں گئے تھے، دونوں پنڈی سے تھے، ایک میں تھا اور ایک اور میرا ساتھی تھا۔ لاہور میں ضمیر کو گولی لگی تھی باقی بلوچ کے ساتھ۔ سر لاہور میں ضمیر کے بندے بہت ہیں نا، مطلب ایک ضمیر کے لیے آپ کو 48 بندے اپنے پاسے کرنے، وہ پیسے بڑے زیادہ لگیں گے اس میں میرے خیال ہے۔ معلوم نہیں ہے پیسے کبھی کس کے کام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس میں رکھے۔ پیسے جو ہے یہ کبھی کام نہیں آتے، بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ ہم بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں جی بہت کم جیت رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کا یہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلہ مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے اللہ کے یہاں کہ شیخ حفیظ جیت رہے ہیں۔ شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 180 سیکیور ہو جائے گا، اپوزیشن 157 سیکیور کرے گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں فواد چودھری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہتر فیصلہ بتا سکتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ شیخ حفیظ جیتے گا انشاءاللہ۔ صحیح، لیکن آپ کا دل کیا کہتا ہے شیخ صاحب، کیونکہ آپ کا دل بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جیتیں گے، تو کتنی ووٹس مل جائیں گے ان کو؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ووٹ سیکیور کرے گا وہ، اوپر کا مجھے پتا نہیں ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی سے کوئی ووٹ دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پارٹی سے اختلاف رکھنے والے کئی ہوتے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں سے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا جس کا پہرا دے سکوں۔ شیخ صاحب، اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ سے میری اللہ خیر کرے۔ شیخ صاحب، آج آپ دعائیں بھی دے رہے ہیں بہت ساری، آپ جب آتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں۔ گزشتہ رات سے ہم نون لیگ میں بالکل ایک سائلنس دیکھ رہے ہیں، گزشتہ رات سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، اسکرین شاٹس آ رہے ہیں، نون لیگ مکمل طور پہ سائلنٹ ہے۔ میں سر آپ سے اس کی وجہ جاننا چاہوں گا، رہنمائی فرمائیں سر ہماری۔ دیکھیں نون لیگ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، شہباز کی بھی آج تاریخ لگی ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ لگ جائے گی سوموار والے دن، اور حمزہ بھی ریلیز ہوئے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف تو اکٹھی ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اچھا استعمال کیا نون لیگ کو، ان سے ضمنی الیکشن بھی کروائے ہیں، ان سے سینٹ کا الیکشن بھی کروایا ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ سینٹ کے دن حکومت ہی نہیں ہوگی، ہم سے ایسی بات ہی نہ کرو، آج حکومت بھی ہے اور حکومت جیتنے بھی جا رہی ہے۔ الٹیمیٹلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مقابلہ ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ الیکشن میں یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کے ووٹ تقسیم ہوں گے، اور یہ جو انہوں نے ایک نام نہاد اتحاد بنایا ہوا ہے، یہ تھوڑے عرصے کا اتحاد ہے، جب یہ تھک جائیں گے۔ اب دیکھیں نا 6 مہینے سے آپ نے سینٹ کے پیچھے لگایا ہوا ہے لوگوں کو، اور لوگ تو تھک چکے ہیں سن کے۔ آج کا دن تھا، آج کے دن شام کو
कोई रिलैक्स करेंगे, लोग रिलैक्स करेंगे क्योंकि लोग बिल्कुल। और आज का दिन तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेख साहब ये बताएगा आज क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे ना हम सरप्राइज देंगे, तो कौन सरप्राइज बिलावल देगा? भुट्टो साहब तो सारी जिंदगी से सरप्राइज ही दे रहे हैं, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं होगी। ये समझदार लोग हैं, ये इतने लाखों लोगों और हजारों लोगों के वोट लेके आए हुए हैं, इनको पता है कि हफीज शेख का जीतना जरूरी है और हफीज शेख की जीत जो है वो अपोजिशन को कमजोर करेगी और हुकूमत को ताकतवर करेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। जनाब वफाकी वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुराद सईद इस वक्त मीडिया से बातचीत करें। खुद से सवाल करें, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, ये पिछले 1-2 हफ्ते जब इन्होंने ये मनाजिर देखे तो बड़ा दुख हो रहा था कि एक करप्ट को जो सनद याफ्ता ना अहल है, उसको पता नहीं बड़ा सियासी है, बड़ा रख रखाव का बंदा है। अब ये सियासी कैसे हैं कि जरदारी के स्विस बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ है, स्विस हुकाम को खत लिखना था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं लिखा गया, ना अहल हुआ, इनके मयार पे पूरा उतरा। फिर उसके बाद इनके बच्चों के असासों में इजाफा होता गया, उस मयार पे भी पूरा है। खातून अव्वल तुर्क के उसने सैलाब ज़दगान के लिए हार दिया, ये बेशरम जो है वो हार भी चुरा के लेके गया, उस मयार पे भी पूरा उतरता है। एंजेलिना जूली आई पाकिस्तानियों की मदद के लिए, अमेरिकी एक एक्ट्रेस आती है और ये क्या करता है कि उनसे डिमांड करते हैं कि मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है, अपने अहल खाना के लिए खुसूसी तैयारी का इंतज़ाम करके यहाँ पे बड़े दावत का एहतिमाम किया जाता है। अगले दिन बैनुल-अक़वामी मीडिया कवर करता है कि एंजेलिना जूली ने कहा कि इसी तो शर्म नहीं है, हमें शर्म आई, तो इतनी भी सी शर्म होती। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि ड्रोन हमलों के हवाले से जो तजाद मौक़िफ़ था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी रख रखाव का बंदा है। अब ये क्यों इनका इंतखाब था पीडीएम का, इसमें भी ये एक्सपोज हो गए। इसलिए इनका इंतखाब था कि एनआरओ लीग, जो एनआरओ मांग के जिनको नहीं मिला, फेटअप की कानून साजी के वक्त इन्होंने तहरीर एनआरओ मांगा, इनको नहीं मिला, जो उसमें बेनिफिशरी होने थे, उसमें जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह के सब में यूसुफ रजा गिलानी भी था। तो एनआरओ मांगने वाला पीडीएम का उम्मीदवार बनेगा, करप्शन, करप्ट होना, किकबैक्स करना, वो इनका उम्मीदवार बनेगा, हार चुराने वाला, तोशाखाने की गाड़ियां चुराने वाला, जरदारी की नजर करने वाला, उनकी सहूलतकार बनने वाला। मैं सोच रहा था आज इनको थोड़ी सी शर्म आई होगी कल के बाद, तो अरशद शरीफ साहब ने जो वीडियोज वो सामने लेके आया है, उसके बाद इतनी सी तो शर्म होगी कि आज ये गिलानी भी नहीं दिखाई देगा, फरजंद जरदारी भी नहीं दिखाई देगा, पीपल्स पार्टी और पीडीएम का कोई बंदा भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन शर्म है ही नहीं, अदम दस्तिया भी है इनके यहाँ, फिर बैठे हुए हैं आज। और इस इलेक्शन में क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, ये पहले जब हुकूमत बनी एतमाद का आउट हासिल नहीं कर सकते, हासिल करके दिखा दिया। पहला बजट पास नहीं कर सकते, नंबर पूरे नहीं है, करके दिखा दिया। फिर कहा गया कि फेटअप की कानून साजी के वक्त कि मुल्क को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया था, बेशक ग्रे लिस्ट में चला जाए हम वोट तब देंगे, एनआरओ दे रहे, एनआरओ भी नहीं दिया, वो फेटअप का कानून साजी भी हो गई। फिर उसके बाद बजट आया, फिर ये बात की गई, फिर कहा कि पेशावर में तारीखी जलसे करेंगे, नाकाम हो गया, लाहौर में नारी पाकिस्तान बनेंगे, शर्म ही नहीं है, नाकाम हो गए। फिर उसके बाद अब ये वाविला छोड़ दिया कि गिलानी आ रहा है, पता नहीं करप्ट एक बंदा, उसको तौरीफ भी मिल रही है, उसके ऊपर बातें भी हो रही, हम किधर जा रहे हैं? खुद से सवाल करें, अब अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कम से कम एक वालिद इतना तो सोचता है कि अगर ये करप्ट था, अपने बच्चों को वो दूर रखता है। इन्होंने बच्चों को, नवाज शरीफ ने भी बच्चों के नामों पे असासे बनाए, जरदारी ने भी बच्चों को डायरेक्टर्स कंपनी के लगाए, फिर इस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने अपने बच्चों को इन चीजों के ऊपर लगा दिया। हम यहाँ पे किन लोगों के ऊपर बात करते हैं? आज शाम के बाद क्या होगा? पहले रोना धोना होगा, फिर यहाँ पे इल्जामात लगेंगे, फिर एक नया चूरन बेचने की तैयारी करेंगे, फिर यहाँ पे एक तमाशा लग जाएगा और उस तमाशे के ऊपर फिर बहस होगी। मतलब ये कब तक चलेगा? इस चीज को खत्म होना चाहिए। और जो कल चीजें सामने आई है, मेरे ख्याल से उसके बाद तो इनका थोड़ी सी भी शर्म होना कि सिंध की तरक्की का बजट आप किधर लगाते हो? आपने अपनी हुकूमतों में जो कारनामे की, उम्मीदवार भी आपका इस तरह करप्ट, और फिर जो आपने दुकानें लगाई हुई है उसका आप जमीरों के सौदागर बने हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर से ही साबित हुआ, और अल्लाह अल हक़ है, इमरान खान ने जो क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आए, इमरान खान जो पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़ी जदोजहद 22 साल जदोजहद के बाद हुकूमत में आए, इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए 124 दिन का
धरना दिया और इमरान खान ही वो बने जो इलेक्शन की निज़ाम में भी ओपन बैलेट से करवाना चाहते हैं। ये फिर से एक दफ़ा बेनकाब हुए, फेटअप में भी कौम ने देखा, अपनी NRO के लिए इन्होंने वोट नहीं किया, अभी इसमें भी लोगों ने देखा और इनका असल चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन शाम के बाद आप एक नया चूरन बेचते हुए देखेंगे। शुक्रिया। मुराद सईद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, ये मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पे हम लाइव दिखा रहे थे। सेनेट इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद थे जनाब फारूक सत्तार साहब, उस हवाले से भी हमने आपको आगाह करते रहे, उनके साथ डिस्कशन भी हमारी जारी है। और फारूक भाई की माहिराना राय भी इस हवाले से जानी, क्योंकि इनको बहुत एक्सपीरियंस है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। और अभी हम देख रहे हैं कि मुराद सईद साहब कौमी असेंबली के बाहर जो जर्नलिस्ट है उनके सवालात के जवाब दे रहे हैं। उसामा बिन लादेन से भी इसने पैसे लिए। जो दूसरी जुमात है वो पर्ची पे चलती है। अब पर्ची वाली जुमात किस तरह आप तवक्को कर सकते हैं कोई इस्लाहत चाहेंगे? इमरान खान ही कर सकता है और इंशाल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे। ये जो 4 सेनेटर आए थे केपीके से भी, जिनमें 3 हैं और बलीजारों हैं। जनाब यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपकी माहिराना राय को हम शामिल करते चले। फिलहाल ख़वातीन और हज़रात लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। यहाँ आपको एक अहम खबर शेयर करते चले। इस्लामाबाद से वफाकी वजीर फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत की जो नाली दरख्वास्त है उसमें रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ आपको बताते चले जनाब इस हवाले से जहांगीर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी जहांगीर, बताइएगा तफसीलात इस हवाले से। वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा ने अपने ओहदे यानी रुकन कौमी असम्बली के हैसियत से इस्तीफा नामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश किया। जब जो वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शहरियत छुपाने पर नाइली केस पर समाअत हुई तो फैसल वाडा के वकील ने अदालत को बताया कि स्पीकर के दस्तखत इस्तीफा नामे पर मौजूद हैं और इस वक्त दलाइल जारी हैं, जिस पर उनके जो मुखालिफ वकील हैं दरखास्त गुजार जो कि दोहरी शहरियत छुपाने पर फैसल वाडा के खिलाफ केस किए, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारा जो केस है फैसल वाडा की इस्तीफा की हैसियत से नहीं है। अब वो जो है इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो है फैसल वाडा की नाअहली के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया और फैसल वाडा की इस्तीफा को अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया और इस वक्त सेनेट इलेक्शन जारी है, वो अपना वोट खास करने भी जा रहा है, जिस पर समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं। जी सही, जहांगीर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। जनाब वफाकी वजीर फैसल वाडा ने अपनी दोहरी शहरियत केस में जो अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके वकला का डेफिनेटली यही कहना होगा कि जो केस है वो पूरा गैर मौसर हो जाएगा। बिल्कुल शफात, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फैसल वाडा ने कौमी असेंबली के बाहर गुफ्तगू भी की थी, क्योंकि आज सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, 37 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं के लिए इंतखाब हो रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि फैसल वाडा साहब आए यहाँ पर, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, वो भी एज ए सेनेटर वो कैंडिडेट हैं। उन्होंने जब अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या मीडिया से गुफ्तगू की थी, ये अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। हफीज शेख साहब जीत जाएंगे सर? हफीज शेख साहब बाय फार जीतेंगे, गिलानी साहब हारेंगे और उसके बाद गिलानी साहब को एडजस्ट कराने के लिए, शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक मुंतखब सेनेटर को पीपल्स पार्टी हटाएगी और उसको जगह देगी। क्या कहना था फैसल वाडा का, ये तो आपने सुना, काफ़ी पुरुमीद शफात वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो आज के होने वाले इंतखाबात के हवाले से। स्पेसिफिकली जो कांटे का मुकाबला है अब्दुल हफीज शेख साहब और यूसुफ ज़रदानी के दरमियान, यानी एक जो सेनेटर है उसको पीपल्स पार्टी हटाएगी अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए। बड़ी दूर रस बात की है इन्होंने, बहुत मुस्तकबिल में बड़ी दूर की छलांग है जनाब। लेट्स सी, देखते हैं जनाब क्या होता है। यहाँ पर एक और खबर शेयर करते चले जनाब। बिल्कुल शफात, अब से थोड़ी देर पहले फैसल जावेद खान साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उनका कहना था कि इंशाल्लाह आज फतह का दिन है, आज अवाम की फतह होगी, इमरान खान की फतह होगी, पाकिस्तान की फतह होगी, आज करप्ट माफिया को शिकस्त होगी, ज़मीरों के सौदागरों को शिकस्त होगी, आज PDM का हर हरबा नाकाम होगा, इंशाल्लाह फतह इंसाफ की होगी। और साथ में फैसल वाडा साहब ने एक वीडियो भी शेयर किया शफात, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं।
غالباً شباب اس گانے کے ساتھ بڑی یادیں جو ہیں وابستہ ہیں, اسپیسیفکلی جب 1992 میں جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو دس واز دا سانگ. جی ہاں جی, یہ تھا اینتھم 1992 کے ورلڈ کپ کا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب, وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اور وہ وزراء جو ٹولیوں کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے آنا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل, یہاں پر بھی 2018 تک تقریباً یہی صورتحال تھی کہ کوسٹر تو نہیں لیکن ٹولیوں کی شکل میں یہ آتے تھے, اور کوسٹر نہیں ہوتے, ان کو چمچماتی گاڑیاں تھی جس میں امیدوار آگے اور اس کے بعد گروپ لیڈر, اور وہ ایک ساتھ یہاں پر آتے, گروپ کی شکل میں جاتے, ووٹ کاسٹ کرتے. جو اپوزیشن ارکان تھے وہ MP ہاسٹل یا کسی MP کے گھر سے آتے, جبکہ جو حکومتی اراکین ہوتے ہیں ان کے لیے CM ہاؤس میں ناشتے کا انتظام ہوتا, اور اس کے بعد وہ گروپ کی شکل میں یہاں آتے. لیکن اس بار حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں نے اپنی حکمت عملی یکسر تبدیل کر لی ہے. جتنے بھی اراکین ہیں وہ اکیلے اکیلے آ رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں, کیونکہ ایک تو ان کو گن مین وغیرہ ساتھ لانے کی اجازت نہیں, صرف ایک ڈرائیور وہ ان کے ساتھ اسمبلی کے حدود میں داخل ہو سکتا ہے, ان کو اجازت ہوتی ہے, تو وہ آ کے گاڑی پار کر کے اکیلے ہی آ کے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھس جاتے ہیں. اسی طرح جو امیدوار ہے وہ بھی اکیلے اکیلے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو PTI کے ڈاکٹر ہمایون تھے وہ اکیلے آئے, وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب وہ اکیلے آئے, اس کے علاوہ تاج محمد افریدی تھے وہ اکیلے آئے, جماعت اسلامی کے اقبال خلیل تھے وہ اکیلے آئے. تو اس دفعہ پالیسی تقریباً مکمل چینج کر لی گئی ہے. وہ یہاں KP اسمبلی میں اگر ہم ووٹنگ کی بات کریں تو وہ آدھے گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی, تقریباً 9:30 بجے پہلا ووٹ کاسٹ کیا, جو کہ JUI کے چترال سے رکن KP اسمبلی ہدایت الرحمان ہے, انہوں نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا, اور ابھی تک تقریباً 7 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں, جن میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی اور ڈپٹی اسپیکر محمود جان سمیت صوبائی وزیر. تو ظفر ابھی تقریباً سب پارٹیوں کے نمائندگان میں سے کچھ نے ووٹ کاسٹ کر لیا, یا کوئی پارٹی ایسی بھی ہے جس کا کوئی نمائندہ نہیں آیا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پارٹی ایسی ہے جس کے کسی نمائندے نے, بلکہ 2 پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے نے ابھی تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا, اور عوامی نیشنل پارٹی کے, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک ایوان میں موجود ہیں, ان کے اراکین بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. ان کے ایک رکن خوشدل خان جو پشاور سے ہی رکن KP اسمبلی ہے وہ جا رہے تھے ووٹ کاسٹ کرنے, تو سردار حسین بابک نے انہیں روکا کہ ابھی ووٹ کاسٹ نہیں کرنا, ہم ایک ساتھ گروپ کی شکل میں جائیں گے, اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے. جبکہ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی بار جو سینٹ کا ووٹ پول کر رہا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کے شفیق افریدی, جن کے چچا تاج محمد افریدی سینٹ کے امیدوار بھی ہیں, تو ان کا جب ہم نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ پہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کس طریقے سے ووٹ پول کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا فارمولا لکھا ہوا ہے, تو کہتا ہے یار پہلی بار ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو, تو اس وجہ سے احتیاطاً میں نے وہ جو فارمولا تھا کہ کس طریقے سے کس کو کون سی پرائیورٹی پر ووٹ دینا ہے وہ میں نے ہاتھ پہ لکھ کے میں اندر گیا ہوں, اور اسی کے مطابق میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو پولنگ کا عمل جاری ہے, اور گاہے بگاہے ہم اس کی تفصیلات دیتے رہیں گے. ظفر اقبال بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت ہم ذرا قومی اسمبلی کا رخ کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں حسن ایوب تمام تو صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ جانیں گے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کیا صورتحال ہے پولنگ کی, اور ساتھ میں ہم سندھ اسمبلی کا بھی رخ کریں گے, جہاں پر سندھ اسمبلی سے ہمیں آگاہ کریں گے صورتحال سے ہمارے نمائندے ارباب چانڈی, اور اسلام آباد میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہمارے نمائندے حسن ایوب. حسن, یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے قومی اسمبلی کے باہر؟ دیکھیں جی, اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 80 کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں, جن میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ ہیں, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, اور ایک پوری لسٹ ہے, فہرست ہے. جو اس وقت خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ قومی اسمبلی پہنچے ہیں, انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اس سے قبل خورشید شاہ جو کہ نیب کی تحویل میں ہیں, گرفتار ہیں, ان کو بھی پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن پاکستان نے کیے, اور وہ بھی جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں, اور کچھ دیر میں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ تھوڑی دیر میں جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف, وہ بھی آئیں گے, اور انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تاہم اس کے علاوہ جو دلچسپ بات ہے, یہ تو وہ چیز ہے کہ جو کہ سب کو نظر آ رہی ہے, وہ چیز جو کہ ہم نے وٹنس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جماعت کا جو چیف وپ ہے
वो नोट कर रहे हैं कि जोन सा भी रुकन आता है वोट कास्ट करने के लिए वो भी नोटिस किया जा रहा है और राब्ते भी किए जा रहे हैं। जो उनके MNAs हैं उनको कहा जा रहा है कि आप आएँ और अपना वोट कास्ट करें। तो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है और अपनी वोटों को वो जल्द अज जल्द जो है वो कास्ट कराना चाह रहे हैं और यही वजह है कि तकरीबन 1/4 जो है वो वोट इस वक्त तक कास्ट हो चुके हैं और अभी 11 भी नहीं बजे और 5 बजे तक का वक्त अभी है। तो ये अमल जो है ये जारी रहेगा। जो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है या PDM है, ये जो है कोई लूज एंड नहीं छोड़ रहे और अपना वोट जो है वो कास्ट कराना चाहते हैं। कोशिश दोनों अतराफ की यही है कि वो अपने जो है उम्मीदवार को अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराए, लेकिन ताहम जो अक्सरियत है इस वक्त वो हुकूमत के पास है और हुकूमती इत्तेहादियों के पास है। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है जनाब कि हुकूमत का पलड़ा भारी है और हसन अयूब आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हसन अयूब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध असेंबली का रुख करते हैं जनाब। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध असेंबली का रुख करते हैं जनाब और वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो। कुछ देर पहले जब अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद थे तो PTI मिठाइयाँ बांट रही थी वहाँ पे। अभी जरा एक नजर डालते हैं कि कितने नुमाइंदगान आए हैं और उन्होंने क्या क्या बात की है। जरा वो वीडियो प्ले कीजिएगा जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यहाँ पर कोई जंग शुरू होने वाली है। यकीन है कि आज बड़ी खुश असलूबी से बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमारे सारे सेनेटर्स जो इंशाल्लाह इलेक्ट हो जाएंगे। उस पार्टी के जो मेंबर है वो तो वोट करेंगे लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह के कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए हुए हैं तो जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसको सरप्राइज मिलेगा। मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबर जो हैं वो खुशी से हमें वोट देंगे। PTI को जो है वो उनके अपने मेंबरान जो हैं वो खुशी से जो है वो गवर्नमेंट को वोट देंगे। पार्टी का इंशाल्लाह भारी है। हम तो जमहूरियत चाहते हैं ना, ये लोग जमहूरियत के आदी नहीं है, इनको खटकती है जमहूरियत। जमहूरी पार्टी कामयाब होगी। कैसे PTI के जो MPs या MNAs अपनी क़यादत से नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। PDM के उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। कायम अली शाह साहब को भी आज बहुत ऐसे बात सुना, वो उन्होंने कहा कि हम तो जमहूरियत चाहते हैं, ये लोग जमहूरियत के आदी नहीं। खैर देखते हैं कि आज सिंध असेंबली के जो अरकान हैं वो किस कदर जमहूरियत का कहते हैं ना कि मुजाहरा करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद है। अरबाब ये बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध असेंबली के बाहर। पहले आप तो मिठाई भी खा बैठे होंगे। जी बिल्कुल, PTI की मेहरबानी, उन्होंने जीतने से पहले ही मिठाई बांट दी और सबका मुंह मीठा करा दिया है। लेकिन जब नताज आएंगे तो अल्लाह खैर करेगा, ऐसा ना हो कि उनके मुंह कड़वा हो जाए। अच्छा। लेकिन ये तो सियासत है, सियासत में लेन देन मुझे ये बताएं, आपने मिठाई किस चीज की खाई है? मतलब पीपल्स पार्टी के 99 अरकान है, तहरीक इंसाफ के 30 अरकान है, उसमें से 2 ने ऐलान कर दिया जी हम आज वोट नहीं देंगे, तो 28 अरकान रह गए। गोल्डन फिगर गालबन 21 अरकान का है कि 21 अरकान पे एक सेनेटर बनता है। तो ये किस चीज की मिठाई थी, ये भी जरा बता दें। ये गालबन PTI का ये कहना है कि जो लोग इनके 2 गए भी हैं उनका दावा है कि वो अंदर जाकर इन्हीं को वोट करेंगे। लिहाजा इस यकीन दहानी पर उन्होंने ये मिठाई बांट दी है। अब सूरताल ये, जैसे कि आपने कहा 21 के हिसाब से इस वक्त ज्वाइंट अपोजिशन ने दावा किया है कि उनके पास 63 वोट है। अगर 21-21 का निकलता है रेशो तो उनकी 3 जनरल, एक जो है वो खातून और एक टेक्नोक्रेट निशस्त आ सकती है। लेकिन गालिबन इस वक्त तो उनका पल्ला 4 सीटों पर भारी है और पीपल्स पार्टी जो कि 99 से शुरू कर रही थी, 2 उन्हें PTI के वोट मिलने के इम्कानात हैं जो कि बाजार खुद भी कह गए। तो 101 से शुरुआत करेगी। उनके जो है तकरीबन 6 नशस्तों पर उनका पल्ला भारी है। एक नशस्त ऐसी है जो कि जनरल पर या तो PTI ले सकती है, मुत्तहिदा अपोजिशन, या फिर पीपल्स पार्टी ले सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि या तो फूट पड़ जाए PTI में या फूट पड़ जाए पीपल्स पार्टी में। दोनों अपनी अपनी जगह पर रहेंगे तो फिर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो फिर थोड़ा पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा अपोजिशन का, अगर अपोजिशन मुत्तहिद है। बाजार तो ऐसा ही लग रहा था कि तमाम अपोजिशन के अरकान अपनी अपनी क़यादत में, यानी फैसल सब्जवारी की क़यादत में यहाँ पर MQM के लोग पहुंचे। इसके साथ यहाँ पर जो ये बताएं जरा अरबाब चांडियो साहब, ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे तो एक साथ हमने देखा कि टोलियों में भी आए हैं, कुछ अपने घरों से आ रहे हैं अरकान सूबाई असेंबली, कुछ ने जेल से भी आना है। तो जिन्होंने जेल से आना था वो आ गए?
जी बिल्कुल, जिन्होंने देर से आना वो भी तकरीबन आ गए, उम्मीदवार भी आ गए। असल में 3 हिस्सों में बांट दिया था। हाँ। एक थे जिनको रात को घर जाने ही नहीं दिया गया था, होटल में उनको रखा गया था और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में थे। अल्लाह करे आप और हम भी जो है ना उम्मीदवार बन जाए तो फिर 5 स्टार होटलों में 1-2 रात तो गुजार सकते हैं ना हम भी। मगर ऐसे नसीब हमारे कहाँ। चलो लेकिन वो उसी में थे, मैं खुद आंखों से देख के आया। फिर वही कुछ अच्छे खासे आप मतलब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब आप 5 स्टार होटलों में जाएंगे, वहाँ चेक होगा, बैलेंस होगा, ऑडियो लीक होगी, वो फिर अलग मसला हो जाएगा। बट एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ अरबाब चांडियो साहब मौजूद थे, हमारे साथ इस्लामाबाद से हसन अयूब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख्वातीन और हज़रात, आज पूरा दिन ARY की स्क्रीन पे आप लम्हा ब लम्हा अपडेट देखते रहेंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आखिरी वोट डलने तक अपडेट्स आते रहेंगे, उसके साथ साथ तज्जिए आते रहेंगे और ये आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। बिल्कुल जवाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबात, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में, पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट के पैनल्स के साथ आप इंशाल्लाह जब तक नताइज नहीं आ जाते और नताइज आने के बाद भी ये अपडेट्स का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ARY न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे और शफात को बाखबर सवेरा में दीजिए इजाजत। कल आपसे मुलाकात होगी अच्छे माहौल में। अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.